Good evening, everyone. First of all, I welcome all of you in this session on how we can prevent burnout. For this, we have with us Dr. Sachin Parab. Dr. Sachin Parab is expert. And what is his field? He is expert in Ashok Kumar, please unmute yourself. Yes, sir. Ashok, am I audible clearly? Yes, sir. Okay, right. Thank you. What is his specialization? He is consultant of training and development. You may be wondering what type of training he provides us. He provides us training how we can channelize our soul energy for personal transformation. And he also teaches secrets of healthy, wealthy, and blissful life. Now you may be wondering what type of personal transformation. During this COVID-19 time, everybody, or you can say every one of us, felt sometimes little down, maybe related to our personal health, maybe related to our personal hobbies, professional life. Everybody faced challenges in professional life also, in managing family. These were challenges which everybody faced, and everybody sometimes felt burnout. So we thought we should have some sessions how we can eliminate these things in our lifestyle, because challenges will come in the future also. Challenges will come. This COVID-19 will go. We may face some other challenge related to our health, related to our professional life. And in medical profession, sometimes we feel burnout because we have to spend so much time, and many of you have just entered in the medical field. In the time to come, you will feel a lot of challenges. So this will be discussed by Dr. Sachin Parab in a more effective manner. I am just providing you overview and what he will talk about. So now over to Sachin Parab sir for interacting with all our colleagues and his colleagues. Yes, thank you very much, sir. Good evening, everybody. Am I audible, sir? Yes, sir, you're clearly audible. Okay, thank you very much. At the outset, I would like to ask one question. Should I speak in English or should I mix Hindi and English also? Mix Hindi and English is okay. Okay, na? Okay, thank you very much. So at the outset, I thank Almighty, whom we call Shiv Baba in Brahma Kumaris, and his corporeal medium Brahma Baba. We all think in Brahma Kumaris that we are instruments of God. So whatever good thing is happening through us, and we are not the doer. He is the doer. So we thank Almighty God, Allah, Ishwar, whomsoever you believe. And I'm congratulating Dr. Neeraj Jain also, because I came to know about him through our pathologist, Dr. Reena Tomar. So, sir, you are doing a wonderful job. My heartiest congratulations to you and your entire team. आपने जो initiative चालू किया है, this is the need of hour. And God bless all of you that you be successful in your endeavor. और हमको बहुत खुशी होगी कि अगर हम आपके किसी भी सेवा में काम आए, क्योंकि आपने ये जो इतना बड़ा काम किया है सबको जोड़ना, जबकि सबकी प्रायोरिटी अभी तक क्लियर नहीं है. लोग भाग रहे हैं, लेकिन क्यों भाग रहे हैं उनको पता नहीं है. और उनको फोकस में लाना, खास करके यंगर स्टूडेंट्स को जो अलग अलग फील्ड से है, हेल्थ केयर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं सर. सो जब डॉक्टर रीना ने मुझे कहा तो मुझे सचमुच में बहुत खुशी हुई अंदर से, क्योंकि मैं खुद ये काम पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ पूरे भारत में.
और एक हमारा प्रोग्राम है वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, तो वो भी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इसका रिजल्ट आ रहा है, लोगों की इसको जरूरत है। सो कॉन्ग्रेचुलेट सर फॉर अ वंडरफुल प्रोग्राम। आपको किसी भी प्रकार की फ्यूचर में मदद चाहिए, जस्ट लेट अस नो, आई एम देयर to help you or organize such sessions across India. We can do this. We have team across India and we would like to join with you for doing such wonderful program. I thank Reena also for giving me opportunity to share my thoughts. So I am starting my session with a PowerPoint. So if you can see my PowerPoint, then please let me know if it is visible. Yes, sir, it is visible. Okay. The name of our session is prevention of burnout. अभी burnout ये शायद कुछ लोगों के लिए नया शब्द हो सकता है, तो कई लोग burnout में समझते हैं ये डॉक्टर्स का सेशन है तो कोई बर्न इंजुरी के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं। So it is not burn injury, burnout ये पूरा इसका नाम है बॉस, एक्चुअली इसका शॉर्ट नेम है बॉस। दो सिंड्रोम होते हैं, एक बॉस और एक रॉस। बॉस माना बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम, इट्स अ डिसीज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, वी कॉल इट बर्नआउट। और इसका अपोजिट होता है रॉस, रस्ट आउट स्ट्रेस सिंड्रोम। रस्ट आउट माना आपके पास बहुत सारी विशेषताएं हैं लेकिन आपकी विशेषताओं का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो या तो आप बर्न आउट होते हैं या तो आप रस्ट आउट होते हैं। या तो आप बर्न आउट होते हैं या तो आप रस्ट आउट होते हैं। तो आज हम बर्न आउट के ऊपर बात कर रहे हैं। बर्न आउट माना जब सिचुएशन, जिसको सर ने अभी बहुत अच्छी तरह से कहा, डॉक्टर नीरज जैन ने, कि एवरी सिचुएशन डिमांड सर्टेन रेस्पॉन्स फ्रॉम अस। और डॉक्टर नीरज जैन हैज यूज्ड a very nice word. He has used the word challenges and he has consciously maybe not used the word tension and stress. So challenges is a wonderful word. When we take situation as a challenge, then we increase our capacity to face that challenge. और सर ने बहुत अच्छा कहा कि ये कोविड इस साल का चैलेंज था, 2 साल का, भविष्य में हमको और चैलेंजेस आ सकते हैं अलग अलग रूप में, तो हमको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो लेट्स कम टू टुडेज सब्जेक्ट, बर्नआउट। तो अगर आप बर्नआउट के बारे में देखेंगे तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वैसे बर्नआउट ये सिंड्रोम सभी प्रोफेशनल्स में होता है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी आते हैं और आईटी के भी प्रोफेशनल आते हैं, सब में बर्नआउट होता है। आज हम, क्योंकि ये सेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए है, तो फोकस हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बारे में होगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में देखो 2017 में ये स्टडी आई थी। ये स्टडी मुंबई में की गई। मुंबई के 2 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये स्टडी की, जिनका नाम है डॉक्टर प्रणव मोदी और अमित घारपुरे। इन्होंने 500 डॉक्टर को क्वेश्चनर दिया, 25 पॉइंट क्वेश्चनर्स, और उन्होंने बर्नआउट को मेजर किया। और क्या पाया, हमको पहले लगता था कि यूएसए या यूके में बर्नआउट ज्यादा है, लेकिन उन्होंने देखा कि 45% ऑफ इंडियन डॉक्टर्स स्कोर्ड हाई ऑन इमोशनल एग्जॉशन, थकावट में, इमोशनली टायर्डनेस में 45% ने स्कोर किया, and 66% suffered from depersonalization, that is lack of empathy for patients. So it was very high figure for Indian healthcare professionals. So burnout, जैसे हम समझते हैं कि फॉरेन में ज्यादा है, ऐसे नहीं है। भारत के हेल्थ केयर प्रोफेशनल में भी बर्नआउट बहुत मात्रा में है। पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, एक मिनट। हाँ, जस्ट आई एम नॉट गेटिंग कि ये, हाँ सॉरी, ओके। ये अगेन, सिंस आई एम फ्रॉम मुंबई में ये सब केसेस और मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सेशन लिए हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो
अटेम्प्ट एंड सक्सेसफुल सुसाइड, ये दो चीजें हैं हमने देखी। एक अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड होता है और सक्सेसफुल, दिस इज द एंड ऑफ बर्नआउट। लास्ट में ये स्टेप्स उठाते। एक डॉक्टर तो हमारे मेडिकल कॉलेज से घर पे चला गया बिना किसी को बताए, तो दिस इज द आउटकम ऑफ बर्नआउट। बर्नआउट डॉक्टर्स जो होते हैं, इवन ऑल मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल, दे आर प्रोन टू मेडिकल एरर्स, उनसे गलतियां होती है ड्यूटी पर जब बर्नआउट होते। इवन फॉर अदर प्रोफेशनल दे मेक मिस्टेक बिकॉज ऑफ बर्नआउट। मैं आपको इसके बारे में कितना बताऊं। टाटा हॉस्पिटल का अगर आप लोगों ने नाम सुना है, सर शायद जानते होंगे। टाटा हॉस्पिटल इज वन ऑफ द लैंडमार्क हॉस्पिटल इन इंडिया। कैंसर हॉस्पिटल है, और कैंसर जैसे प्रोफेशन में बर्नआउट बहुत होता है, ओवरवेलमिंग इमोशंस। तो जब मैं डॉक्टर डी क्रूज करके थे डायरेक्टर ऑफ टाटा हॉस्पिटल, उनको मैं प्रेजेंटेशन देने गया कि सर हमारे पास एक प्रोग्राम है जो बर्नआउट इन हेल्थ केयर प्रोफेशंस को प्रिवेंट करता है। तो जैसे ही मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझे कहा, सचिन तो जल्दी चालू कर, यहाँ पे बहुत जरूरत है। मैंने कहा क्या हुआ सर? तो उन्होंने कहा पिछले ही हफ्ते हमारे इधर एक एनेस्थेटिस्ट ने सुसाइड किया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एनेस्थेटिस्ट में सुसाइड बहुत कॉमन है क्योंकि दे हैव एक्सेस टू ऑल द ड्रग्स। तो जब इमोशंस उसके कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं। माय क्लासमेट who was MD anesthesia, who was very handsome, love marriage हुआ था, he also committed suicide after taking one injection. So we felt very bad. तो सर ने कहा कि आप तुरंत चालू करो, ये सेशन बहुत जरूरी है। So what is burnout? Let's understand what is burnout. Let's understand what is burnout. Burnout का definition जो दिया हुआ है वो है, there are three components of burnout. ये तीन शब्द बहुत जरूरी है। Number one, emotional exhaustion. You're tired and exhausted at the end of the day. Number two, depersonalization, जिसको हमने देखा lack of empathy and reduced feeling of accomplishment that affects the individual in helping professionals. तो ये तीन चीजें burnout का लैंडमार्क है। तो आप अगर ऐसे प्रोफेशन में है और आपके अंदर अभी मैं जो सिम्टम्स या वार्निंग साइंस बताने वाला हूं, तो चेक करो, am I suffering from these three symptoms in detail? We are going to see this in detail. Emotionally drained out, जैसे अभी मेरे अंदर कोई एनर्जी बची नहीं है काम करने के बाद, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ, इवन खाना भी नहीं चाहता हूँ, सिर्फ सोना चाहता हूँ। और ये सभी हाउसमैन और रजिस्ट्रार हमने अनुभव किया है। मुझे अपना पर्सनल लाइफ याद आ रहा है 25 साल पहले जब मैं हाउसमैन था पीडियाट्रिक में, तो इतना भागदौड़ होती थी। लेबर वार्ड में जाओ, डिलीवरी रूम में जाओ, पीडियाट्रिक वार्ड में जाओ, कहीं पर भी आईवी लाइन आउट होता है तो हमको बुलाया जाता था। तो नींद पूरा नहीं होता था, खाना खाने को टाइम नहीं मिलता था, तो हमको चूज करना पड़ता था दो में से किसको चूज करे, खाना खाए या नींद करे। तो हम खाने को स्किप करते थे और नींद को पूरा करते थे, क्योंकि तभी हम नेक्स्ट डे फ्रेश हो सकते। दिस इज टिपिकल ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पर wards are loaded with the patient. I feel nurses and other hospital staffs are also equally loaded with just this workload. So what patients' perceptions about burnout towards the healthcare professional is, we have seen they keep on changing the career, seems depressed, drained and fatigued, frustrated by the job, and seem to be at the end of the rope, totally exhausted. So आपको अगर एग्जॉशन का सिम्टम है तो आपको बहुत अलर्ट होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ बर्नआउट। सेकेंड सिम्टम है डिपर्सनलाइजेशन, जहां पर निगेटिव और साइनिकल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द क्लाइंट्स, वेदर इट इज पेशेंट्स और अदरवाइज, निगेटिव और साइनिकल एटीट्यूड्स होता है। So how patients perceive or clients perceive कि मेरा healthcare professional doesn't seem to care about me, seems to view the patients negatively, blames me for my problems. मैंने बहुत डॉक्टर्स को सेशन लिया है, इवन पैथोलॉजिस्ट और फार्मासिस्ट और नर्सेस, तो उन सबका एक ही मैंने बॉडी लैंग्वेज देखा और उनका जो कंप्लेंट देखा है, वो कहते हैं कि पेशेंट्स आर वेरी इरिटेटिंग,
सभी लोग एक ही कहते हैं कि पेशेंट्स आर वेरी इरिटेटिंग। तो मैंने केवल उनको रिफ्रेम करने को कहा कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आर पेशेंट्स इरिटेटिंग और आई इरिटेट माई सेल्फ। तो जैसे ही आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी द पावर कम्स टू मी। Patients are patients because they are suffering. They are bound to have negative energy. If my energy is not positive, I will get affected by the negative energy of the patient. So patients are not irritating. I irritate myself because of depletion of energy. I start blaming others for my problems. I cut interactions very short. And most common complaint of most of the patient is, ये डॉक्टर सुनता नहीं है किसी की, जबकि लिसनिंग इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग। तो हम जो वर्कशॉप लेते हैं इसमें खास हम लिसनिंग के ऊपर एक्सरसाइज कराते हैं। ओनली लिसनिंग आपको भी हील करता है और सामने वाले को भी हील करता है। थर्ड इज रिड्यूस पर्सनल अकम्प्लिशमेंट characterized by feelings of ineffectiveness in one's professional lives. कई लोग प्रोफेशनल फील्ड में होने के बाद अंदर सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, हम अभी तक पूर्ण संतुष्टता का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। सो हाउ पेशेंट परसीव्स इट, पेशेंट परसीव्स इज कि ये डॉक्टर ये एनर्जेटिक नहीं है, ये टेंशन में होता है जब इंटरेक्शन होता है तब। राइटल इजीली बाय द प्रॉब्लम्स है भैया, कितनी बड़ी स्टोरी सुनाते हो, कितना सुनाते हो, शॉर्ट में सुनाओ। अभी क्या होता है, हमको ओपीडी हैंडल करना होता है, 200 पेशेंट होते हैं, तो 200 पेशेंट को 3 घंटे में हैंडल करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम भले सुबह सोच के जाते हैं आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं शांत रहूंगा, लेकिन फिर भी जब पेशेंट्स अपने प्रॉब्लम सुनाते हैं, मेरी एनर्जी डिप्लीट होती है, तो मैं उनके प्रॉब्लम सुन के आई गेट अफेक्टेड, और मैं फिर सरकास्टिक, मेरी लैंग्वेज जो होती है वो ठीक नहीं होती है, फ्राउनिंग होता है, यहाँ के ये जो मसल्स है ये टेंस होते हैं, and leans away from me, seems disinterested in my problem. This is what the feedback patients have given to us. So how does burnout happen? तो burnout के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैंने जो देखा है कि we take on too much, we feel at times under appreciated. मैं सभी head of the departments को या bosses को एक ही करता हूँ कि अगर आप अपनी टीम को start appreciating them genuinely. और appreciate में 4 चीजें हम विहासा में बताते हैं. It has to be sincere, it has to be specific, identify a quality and don't use a spoiler. कई लोगों का इंटेंशन अच्छा होता है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, अभी नर्स को अप्रिशिएट करना है, नर्सेस एट द बियरिंग एंड ऑफ शॉप, मुझे पता नहीं इस ग्रुप में नर्सेस कितने हैं, नर्सेस को सबका सुनना पड़ता है, घर वालों का सुनना पड़ता है, वहां से आते हैं जॉब पे तो डॉक्टर का सुनना पड़ता है, पेशेंट का सुनना पड़ता है, पेशेंट्स के रिलेटिव का सुनना पड़ता है, शी इज लाइक अ शॉक एब्सॉर्बर. तो उनको अप्रिशिएट अगर हम करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, उनकी एनर्जी बढ़ती है. पर अप्रिशिएट कैसे करते हैं? अननोइंगली सर्टन पीपल अप्रिशिएट. नर्स को अप्रिशिएट कैसे किया? अरे आज तुमने ट्रे कितना, इसे अप्रिसिएशन बाय सर्जन, कि आज तुमने ये ट्रे कितने अच्छी तरह से सजाया है, सभी इंस्ट्रूमेंट्स कालपेल है, फोक है, सभी अच्छी तरह से सजाया है, ये अप्रिशिएट किया. लेकिन लास्ट में क्या बोला? हर बार तुम ऐसा क्यों नहीं करते ना, दिस इज अ स्पॉइलर. आपने शुरुआत पॉजिटिव से की, लेकिन यू एंड विद अ स्पॉइलर व्हिच डजंट जनरेट पॉजिटिव एनर्जी. सो अप्रिशिएट करने का भी टेक्निक है जो हम सिखाते हैं. वी फील हेल्पलेस टू चेंज द थिंग्स. माना एक ऐसी स्टेज आती है जो हम डिप्रेशन में देखते हैं, जो भी डॉक्टर्स है, मेरे पास कई पेशेंट है जो डॉक्टर है, वो पेशेंट है, डिप्रेशन के काउंसलिंग के लिए आते हैं. And doctors are very intelligent at masking their depression, and this is common. I have seen in all intellectuals. They use certain mask. We call mask depression. जिसको हिंदी में किसी शायर ने कहा हुआ है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो. So masking is very dangerous because they are in denial stage. So because of all these things, they reach a stage of mental exhaustion caused by perception of being overwhelmed. Now this English word is very important. Overwhelmed माना
जिस क्षेत्र में मैं हूँ, मेरा जो भी ड्यूटी है, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय या और एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, वो जो काम का प्रेशर है वो मेरी कैपेसिटी से बाहर हो रहा है और मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं रख पा रहा हूँ, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ. सो बेसिकली बर्नआउट क्या है? बर्नआउट इज अ रिएक्शन टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. You are reacting to the stressful situation. The commonest reaction is gussa, anger. You can go in depression or you can get angry. Your sleep will get disturbed. You may not get sleep and host of other problem. So these are the warning signs. अगर आपके अंदर या आपके आजू बाजू में किसी के अंदर देखे, so they need help and you must seek help at the right time. I work in suicide prevention. तो हम ये बताते हैं कि वार्निंग सिग्नल्स को कैच करना चाहिए. इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रेक द स्ट्रेस बिफोर इट ब्रेक्स यू. और मैं ये कैसे कह रहा हूँ? मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस स्टेज. मैं अपना अनुभव थोड़ी देर में आपको सुनाने वाला. लूजिंग इंटरेस्ट एंड मीनिंग इन योर वर्क. पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी मुझे काम में मजा नहीं आ रहा है. करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ. डिस्टेंसिंग फ्रॉम अदर्स. मैं दूसरों से दूर जा रहा हूँ, दूसरों से मैं मिल नहीं रहा हूँ, बात करने का मेरे को किसी से इंटरेस्ट नहीं है. मेरी इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन मेरा बढ़ गया है. पहले जिन बातों से मैं इरिटेट नहीं होता था, अभी छोटी छोटी बातों से मैं इरिटेट होता हूँ. मैंने बहुत लोगों को देखा, ये ऑनलाइन सेशन जब से चालू हुए, हमने कोविड में बहुत सेशन हुए, कोई टेक्निकल सैग आया तो गुस्सा बढ़ता है. तुम क्या कर रहे हो, पहले से क्यों नहीं किया, क्यों तुम्हारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है. पहले ये बातें इरिटेट नहीं करती थी, लेकिन अब ये इरिटेट करने लगी है. छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आता है. अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि when you are 1 minute angry, you lose 60 seconds of happiness. We are start losing the happiness. The early stage है कि खुशी कम होने लगती है. वो शायर ने कहा ना, ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, लेकिन ये जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं है. रिड्यूस प्रोडक्टिविटी. पहले मेरा प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा था, अभी मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई. आई फील ट्रैप्ड and unable to do anything. I have seen people getting blocked. उनको दवाई का नाम नहीं याद आता है. ऑफ कोर्स कोविड का कॉम्प्लिकेशन हमने देखा, कोविड में ये कॉम्प्लिकेशंस आता है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, भूल जाते हैं. लेकिन दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. यू फील ट्रैप एंड अनेबल टू डू एनीथिंग. साइनिसिज्म, फटीग एंड फीलिंग ड्रेन. गलतियां निकालते रहना दूसरों की, थकावट, फीलिंग ऑप्रेस्ड बाय द सिस्टम एट द वर्क. पहले ये नहीं होता था, लेकिन अभी मेरे से नहीं हो रहा है. सो चेक करें कि मैं इसको कैसे मैनेज करता हूँ. आस्क दिस क्वेश्चंस. आप सभी लोग ये प्रश्न अपने आप से पूछो. इफ यू आर अ प्रोफेशनल, वेदर हेल्थ केयर और अदरवाइज, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि मैं अभी पहले से ज्यादा क्रिटिकल होते जा रहा हूँ, साइनिकल या सरकास्टिक हूँ. नंबर 2, do I drag myself to the workplace and I have difficulty or trouble in starting once I arrive? Am I less patient and more irritable with my co-worker, which earlier I was not, but this is a change which I am seeing in myself. So ask yourself these questions. And the easiest way to run away from the situation is using food, alcohol and drugs or compulsive behaviors to feel better. अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं कुछ तो करूंगा. आई विल डू समथिंग. तो मेरे लिए क्या है कि मैं खाना खाऊं. आई कीप ऑन बिंजिंग, बिंज ईटिंग कहते हैं. और जो मेरी प्रोग्रामिंग हुई है इंडस्ट्री से, आई फील सॉरी फॉर द इंडस्ट्री बिकॉज आई एम वर्किंग इन डी एडिक्शन. और लोग प्रमोट करते हैं कि अल्कोहल इज अ गुड वे ऑफ मैनेजिंग द स्ट्रेस, विच इज अ मिथ promoted by the alcohol industry. No way alcohol is a good stress managing drug. It's not a drug. वो addiction में लेके जाता है. And alcohol latest study जो आई है, no safe level. पहले हमको सिखाया जाता था 2 packs of alcohol are safe, but that is wrong, promoted by the industry. So ये सब long run में आपको नुकसान देते हैं. तो मुझे feel better करने के लिए मैं कौन सी compulsive behavior को use करता हूँ. Ask yourself this question, and important question, ask about your sleep habits and appetite. पहले मुझे नींद जल्दी आती थी, अभी मैं बिस्तर पे जाता हूँ फिर भी नींद नहीं आती है. I keep on worrying about the patient or myself. मेरी भूख के ऊपर भी इफेक्ट आया है.
मुझे भूख या तो बहुत लगती है या बिल्कुल नहीं लगती है. There is a wonderful article which is published कि food and mood के ऊपर, food decides my mood and mood decides my food. So to feel better, I use food. So ask these questions, couple of more questions. Do you feel insurmountable barriers at the work? क्या आपको ऐसे लगता है कि आपके वर्क प्लेस पे लोग आपको जानबूझ के रोक रहे हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, या मेरे दुश्मन है, मेरा अच्छा नहीं चाहते? इज दैट फीलिंग कमिंग फ्रॉम यू? डू यू फील लैक ऑफ एनर्जी? मेरे पास पहले जैसी एनर्जी नहीं, मैं जल्दी थक जाता हूँ. डू यू हार्ड टाइम लाफिंग एट योरसेल्फ? कल ही 20 तारीख को मैंने सेशन लिया. 20 मार्च इज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे. तो बहुत सारे लोग जुड़े थे, तो मैंने कहा उनको शुरुआत से, कैन यू ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस? क्या आप अपने चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं? मुझे पता नहीं ये सेशन में लोग स्क्रीन क्यों ऑफ करते हैं. शायद वो इसलिए ऑफ करते हैं कि वो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे सामने डॉक्टर देवेंद्र सचदेव का फोटो मैं देख रहा हूँ, उनके चेहरे पर अभी स्माइल आया. अशोक कुमार का फोटो देख रहा हूँ, वो भी मुस्कुरा रहे हैं. तो क्या हमारे जीवन में हमको डिफिकल्ट हो रहा है मुस्कुराने के लिए? आई फाइंड इट हार्ड, क्योंकि जो अंदर होगा वो बाहर होगा. दे से फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. जो अंदर चल रहा है वो चेहरे पर आएगा ना. अंदर ही खुशी नहीं है तो बाहर चेहरे पे कहां से खुशी आएगी? हम कॉन्शियसली भी हंस नहीं पाते हैं, लोग हंसना भूल रहे हैं, इसलिए कॉमेडी शो वगैरह आ रहे हैं. पहले तो लोग कॉमेडी शो देख के हंसते थे, अभी कॉमेडी शो भी सीरियसली देखते हैं लोग. यहाँ तक पहुंच गए हैं. So it's not today's subject, but I am sharing my observation. Do you have unexplained headache, neck pain or back pain? These are all emotional blockages. हम सब जानते हैं टेंशन हेडेक होता है इवनिंग में, टेम्पोरल एरिया में दिस ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल ये टेंस हो जाती है. हमारी मुंबई की भाषा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम उसको कहते हैं, बॉलीवुड की भाषा में हम कहते हैं, इसने मेरे दिमाग का दही बना के रखा है. ये मेरे दिमाग में जाता है. तो कोई दिमाग में जाएगा तो हेडेक तो पैदा करेगा ही. तो क्या मेरे ये लक्षण है, पहले नहीं थे अब ये आने लगे हैं? यस, it could indicate that you are suffering from mental health issue such as depression or a burnout and you need professional attention. So before moving ahead, मैं थोड़ा presentation को stop करके आपसे response चाहता हूँ. How many of you think that you are having this burnout right now? You are displaying the symptoms of burnout. Sincerely बताओ. जो भी कहूंगा सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए है. So how many of you who are participating here would like to share कि yes, I am having one or more symptoms of burnout? Just raise your hands. कई लोगों ने तो छिपा दिया है. At least by mind. Okay, some people are smiling. तुम्हारा ये मुस्कुराना भी राजयुक्त मुस्कुराना दिखाई दे रहा है. ठीक है. Acceptance is the first step towards healing. जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे. डॉक्टर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, आई एम अ डॉक्टर, कि डॉक्टर्स दे आर इंटेलिजेंट, उनका IQ बहुत अच्छा होता है, बट दे हैव प्रॉब्लम कि दे आर बैड पेशेंट्स. ऐसे कहते हैं डॉक्टर्स आर बैड पेशेंट्स, है ना. इसलिए डॉक्टर्स हमेशा सरेंडर करते हैं दूसरों को कि आप मुझे ठीक करो, मैं नहीं करने वाला. गुड, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने हाथ खड़ा किया. और जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, मैं मानता हूं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट देम दैट दे डू नॉट सफर फ्रॉम दिस मैलेडी, दे हैव नॉट टच दिस. बट मैं पर्सनली स्टेज से जा चुका हूं, इसलिए मैं आपको मेरी स्टोरी सुनाने वाला हूं एट राइट टाइम. सो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या नहीं कर सकता हूं. तो किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? तो हमको फोकस करना चाहिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं. तो मुझे ऐसे लगता है the one thing which all healthcare professional can do is prioritize in your life. What is important to you in your life? आपके लाइफ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है?
There are various areas of life, personal life, professional life, family life, या religious life, जो भी है, social life. What is important to you in your life? और उस अनुसार आपको अपनी टाइम को सेटल करना. Ask yourself this question. Ask yourself question. I am connecting with you with a story from endocrinologist from Ahmedabad. अभी देखो, ही इज डीएम एंडोक्राइनोलॉजी. हमको पता है डॉक्टर को डीएम पहुंचने तक कितना समय लगता है. एमबीबीएस 4.5 साल का, फिर एमडी 3 साल का, फिर डीएम, फिर प्रैक्टिस चालू करते हैं. लेकिन ये डॉक्टर का मुझे इसलिए अच्छा लगा कि दिस डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं दिन भर में केवल 10 पेशेंट दिखूंगा, बस, दैट्स ऑल. मैं इसके आगे एक भी पेशेंट नहीं. सो ही वाज वेरी क्लियर इन हिज प्रायोरिटी ऑफ लाइफ. मेरा जितना भी इनकम होगा मैं उसमें आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि तभी वो खुद के लिए टाइम दे सकता है, फैमिली के लिए टाइम दे सकता है. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. सो सेट प्रायोरिटी इन योर लाइफ. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ. आजकल मैं देख रहा हूं कि हार्ट डिसीज है ना, बहुत लोगों को हो रहा है ना. वी ऑल नो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन. हार्ट अटैक आता है, बाईपास करना पड़ता है. तो बाईपास थिएटर के बाहर एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं मोस्ट ऑफ द सेशन में वो स्लोगन सबको बताता हूँ. व्हाट वाज दैट स्लोगन? कि बाईपास थिएटर के बाहर लिखा था कि अगर दिल खोल दिया होता दोस्तों के आगे तो आज ना खोलना पड़ता औजारों के आगे. अगर दिल खोल दिया होता दोस्तों के आगे. या बशर की शायरी, अगर इफ यू अंडरस्टैंड हिंदी, सर की परमिशन से मैं हिंदी बोल रहा हूँ. बशर करके पोएट है, उसने कहा था कि ख्वाहिशों के इन बाजार में तू क्या क्या कर रहा है बशर, जितना तू मर रहा है उतना तो जीना भी नहीं है तुझको. जितना तू मर रहा है उतना जीना भी नहीं है. सो सेट योर प्रायोरिटी. People lose their health to earn the money, and when they earn money, they lose that earned money to regain the lost health. So you're back to square one. So why not to have a balance in life? Set priority in your life. Practice good stress management on a daily basis. आपका डेली रूटीन ही आपको बचाएगा. मैं आपके साथ बहुत रियल स्टोरी शेयर कर सकता हूं. मुंबई में आई वाज वर्किंग विद केएम हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट. माय स्पेशलाइजेशन इज क्लिनिकल रिसर्च. I am specialized into GCP ICH guidelines. So I was with industry doing a trial with a DM cardio from Mumbai KM Tertiary Care Hospital, Dr. Prasanna Nyadish. He was excellent unit chief, but at the age of 42, he died because of heart attack, and we felt very sorry. But what the lesson we learned was he used to go to gym every day. Gym जाता था वो, ऐसे नहीं कि exercise नहीं करता था. But he was perfectionist, and one sudden day he developed that chest pain and he collapsed on the spot. He is a DM endocrino, but he was getting a signal. 3 दिन से उसको left hand में pain हो रहा है. See, when he came from exercise, he asked his wife कि मेरा ना shoulder pain कर रहा है. Look at cardiologist saying कि मेरा left shoulder pain कर रहा है. हम सब doctors को बताया जाता है heart pain can be referred to your left hand. 3 दिन से बॉडी सिग्नल दे रही है आपको कि कुछ तो गड़बड़ है. लेकिन डॉक्टर्स की यही गलती होती है कि सिग्नल को इग्नोर करते हैं. सो इग्नोरिंग अ सिग्नल गिवन टू यू बाय बॉडी एंड माइंड is like ignoring a time bomb which is ticking inside. It can blast at any moment. So please don't ignore the signals given to you by your body and mind. So practice stress management on a daily basis. Know the warning signs. You have reached the age. Usko pehchano early stage mein, and have stress management strategies in place. अगर आपको ये स्ट्रेटेजी चाहिए तो हम पूरा सेशन इसके ऊपर अलग ले सकते हैं. फॉर यू ऑन रिक्वेस्ट हम ले सकते हैं. इसके ऊपर तो हम 8 घंटे का सेशन और वर्कशॉप ले सकते हैं. सो आई एम रिक्वेस्टिंग डॉक्टर नीरज जैन, अगर ये सेशंस आपको लेने हैं तो हमारी टीम आपको फ्री सर्विस देने को तैयार है. अक्रॉस इंडिया वी हैव प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड, एंड आई थिंक इट इज द नीड ऑफ द आवर. प्रोफेशनल एरिया में क्या कर सकते हैं? Talk with your colleagues or have clinical or peer supervision regularly.
have a variety of therapeutic approaches. Don't just stick to medicines. There are other approaches also, lifestyle modifications. Okay, belong to a professional organization जहां पर आप apart from अपने local कुछ और कर सकते हैं, and stay current on ethical standards and changes in laws. हमको क्या है, competency and compassion, इन दोनों का balance रखना पड़ता है. We are professionals, so we have to keep a balance between competency and compassion. Document well, have continuing education and seek therapy when needed. Personal area, do something physically, mentally and spiritually. Make efforts to take care of yourself. हम पूरा आधा दिन विहासा में सेल्फ केयर के ऊपर लेते हैं कि खुद का ध्यान कैसे रखना चाहिए. सी मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा. My age, current physical age is 50 years. No risk factors, not overweight, no diabetes, no hypertension, nothing. But 10 days back, I got a blood clot in my brain, which was a shock to me. I developed a slurred speech. I'm a speaker. So I developed a slurred speech. तो मेरे अंदर घंटा बजा, घंटी नहीं घंटा बजा, कुछ तो गड़बड़ है. So I checked my BP. BP was normal. My sugar was normal. All parameters were normal, but I was having a slurred speech. Immediately हमारे न्यूरोफिजिशियन है हरियाणा में, रोहतक में, डॉक्टर किरण बाला, उनको मैंने फोन किया. उन्होंने कहा तुरंत सीटी स्कैन करा लो. सीटी स्कैन में पता चला my cortical veins are blocked. Next day, then we started our anti-panic. But मेरे से गलती क्या हुई वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. The mistake was मैंने पानी नहीं पिया. मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूँ, नो टी कॉफी. खाने के बाद पानी नहीं पीता हूँ और बोलता रहता हूँ. So my mistake is I ignored the signal of dehydration. Simple mistake है देखो. And I have allergy to drugs, so allergy to dust, so allergic rhinitis, sinusitis हुआ. तो मैंने देखा because of this simple mistake I develop a brain clot. Now I am recovering. With God's help and blessing, I have recovered. But I am sharing with you a person like me who is advising others to take care of their health, but I ignored myself. Overconfidence and ignoring कि ये ठीक हो जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. So this is example which I am sharing. कि जो मेरे से गलती हुई वो आप लोगों से नहीं. Luckily I am saved. No paralysis, nothing. No infarct in the brain, no hemorrhage. But I have done a mistake. That's why I am sharing. And 2 साल I am working with COVID patient non-stop. I was working with IIT Mumbai, a hospital and a BST buses. Both the places, nearly 11 to 12 hours duty every day, including Sunday, no holiday. And I prepare my own food. So I could feel that कि मेरी नींद कम होते जा रही है. These were the signals I was getting, but I totally ignored because of overconfidence that I am a meditator. मैं meditator हूँ, मैं सुबह 3:30-4 बजे उठ के meditation करता हूँ. That was the overconfidence which has harmed me. क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट तो रिक्वायरमेंट होती ही है. आपको रेस्ट चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको खाना चाहिए राइट टाइम पे. बट आई मिस दिस एंड आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. सो दिस इज आई एम टेलिंग यू एज अ डॉक्टर कि प्लीज डोंट डू दिस. नाउ मैं दूसरों को कह के लेकिन अपना ध्यान नहीं रखा. ये मैं आई एम शेयरिंग विथ यू सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हमसे भी गलती होती है. Eat a nutritious diet, exercise regularly, plenty of rest, drink enough water and regular checkup. Although I used to do annual checkup, मेरा annual checkup में सभी parameters में करता था, लेकिन ये suddenly आ गया. 2 महीने में कफ हुआ, मेरा RT-PCR test was negative, so I was like spasmodic cough है, asthmatic है, वो भी ठीक नहीं हो रहा था. But steroid लेना पड़ा, prednisolone, उससे respond हुआ, पर dehydration and not taking a rest, which has affected my life. But now I am recovering. Hopefully I should recover fully. तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि बेसिक रिमेन सेम. बैलेंस इन द लाइफ. आपका रूटीन में बैलेंस, खुद के लिए टाइम दो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. So making time family and friends, expressing thoughts, feeling and needs in appropriate way, taking vacations, having hobbies, making fun a priority, enjoyable things.
Be flexible, honest, curious, prayer and meditation. So when I take care of my body, mind and spirit, I am less like to suffer from this. Now let's come to this package. Permanent solution. मुझे पता है अच्छी तरह से कि 1 घंटे के सेशन से आपका बर्नआउट जाने वाला नहीं है. आई एम अवेयर ऑफ दिस. 1 घंटे के सेशन से कुछ नहीं होता है. दीज आर हैबिट्स एंड दीज हैबिट्स टेक टाइम टू चेंज. तो ये प्रोग्राम है. दिस बुक, लुक एट दिस ब्यूटीफुल बुक, वैल्यूज इन हेल्थ केयर, अ स्पिरिचुअल अप्रोच. और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस दिस वैल्यूज इन इंट्रोडक्टरी कोर्स. फर्स्ट ईयर एमबीबीएस को कंपलसरी ये वैल्यूज सिखाया जाता है. myself, Dr. Reena and other of our faculty, Dr. Kiran Bala, who is a HOD of neurology in Rohtak Medical College. We have taken sessions in medical colleges across India based on this book. अब ये book क्या हुआ, ये book का थोड़ा history बताते. This is दादी जानकी, who was chief of Brahma Kumaris, who was a role model for health, who got the most stable mind award. मोस्ट स्टेबल माइंड अवार्ड इनको मिला था. तो ये शी इज टू विजिट द हॉस्पिटल्स इन लंदन. तो व्हाट दादी ऑब्जर्व कि डॉक्टर्स है या हेल्थ केयर प्रोफेशंस है जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, दे आर टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, उनका मोरल डाउन है. तो दादी को थॉट आया अंदर से, अरे रे ये तो दूसरों की सेवा करने वाले, ये खुद बीमार है तो दूसरों की क्या सेवा करेंगे. तो दादी ने ये कुछ टीम ऑफ पीपल को बताया कि इन लोगों के लिए हमको कुछ करना चाहिए. और फिर ये 9 लोग जिनको आप देख रहे फोटो में, दीज आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड. इसमें ये 9 लोग हैं. सारा एगर है, एनी है, वन वाज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वन इज हेल्थ कंसल्टेंट, वन इज साइकियाट्रिस्ट, वन इज ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टेंट, वन इज occupational therapist, one is general practitioner, one is lecturer at Westminster, and one is BK sister, a surrendered Brahma Kumari sister. ये सब लोग 4 साल तक they sat together, इन्होंने बैठ के चिंतन किया, and they produced this course known as Vihasa, Values in Healthcare, a Spiritual Approach. और ये कोर्स अभी 60 कंट्रीज में चल रहा है, इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, इंडिया में भी चल रहा है. और बहुत वंडरफुल प्रोग्राम है. वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम आई एम एंजॉयिंग. पिछले 15 साल से, 2007 से मैं कर रहा हूं. तो मुझे बहुत खुशी होती है. इसका रेटिंग टॉप मोस्ट रेटिंग है इस प्रोग्राम का. इंडिया में मुझे बताते हुए खुशी होती है, आवर प्रेसिडेंट ऑनरेबल एपीजे अब्दुल कलाम ने इस कोर्स को इंडिया में लॉन्च किया. In picture you can say Dadi Prakashmani, who was chief of Brahma Kumari. This was launched in 2005. Irver Bhai, who is a trustee and general manager, and Dr. Ashok Mehta, who is a president of medical wing of Brahma Kumaris, who brought this course to India. तो ये लॉन्च हुआ, तब से मुझे खुशी है कि मैं ये प्रोग्राम इंडिया में कर रहा हूँ. This program is based on principle which addresses burnout in all healthcare, whether it is doctor, nurses, pharmacist or administrator. Number 1, physician, heal thyself. Number 2, learning through direct experience, no lecture. जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन विहासा में हम नहीं बोलते, हम शेयरिंग करते हैं. And relevance to work and personal life. We take these learnings back to our personal and work life. तो बहुत अच्छा कोर्स है ये. और इसमें 8 मॉड्यूल्स है. देयर आर 8 मॉड्यूल्स. वन मॉड्यूल टेक्स होल डे, 6 hours. So there are values, module on values which addresses strength through motivation. Motivation कैसे बनाए रखे. Peace, benefit from remaining calm. Positivity is the power of thought. Compassion is reeling the healing energy. Cooperation is the wisdom of team. Team को कैसे डेवलप करें. We all know hospital is a team. तो टीम में डॉक्टर, नर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर, सबका रोल इंपॉर्टेंट है. वैल्यूइंग द सेल्फ, सस्टेनिंग द केयर, spiritual care in practice and building resilience was added later on, exploring the ways to draw on inner strength, building resilience. ये 8वां मॉड्यूल इसको ऐड किया गया. अभी इसमें मैंने जैसे कहा, there are no lectures. ये क्वालिटी प्रोग्राम है. The beauty of this program, we don't take more than 20 to 25 people in a group. That is the beauty of this program. It is only 20 to 25 people who participate, and we use these tools. जैसे ऑपरेशन में सर्जन स्कैल्पेल को यूज करता है, कॉटरी को यूज करता है. The tools which are used in this program are meditation, visualization, reflection, appreciation, listening.
क्रिएटिविटी एंड प्लेफुलनेस। इसलिए ये प्रोग्राम सभी लोग एंजॉय करते हैं। मैं आपको कुछ स्नैप्स बताऊंगा। These are the program. This is what चाइना में गए थे डॉक्टर अशोक मेहता. This program is translated in Chinese also. This is Bhavna Ben from UK and Dr. Ashok Mehta from Mumbai, who did this program in China. In Mumbai, I was very fortunate to work with Dr. Ashok Mehta. Dr. Ashok Mehta is the senior most cancer surgeon in India. In this picture, you can see Dr. Ashok Mehta. He has received Dr. B.C. Roy Award, selected amongst the 100 doctors across world in cancer therapy. He was head of the department, head and neck oncology for 30 years in Tata Hospital. And this is the team across India. People have come to participate. We conducted this workshop in Mumbai, and I'm very happy to share with you. In this picture, you can see one doctor here, a nephrologist, pediatric nephrologist, Dr. Manoj Matnani. He used to come from Pune. It takes 4 hours from Pune to Mumbai. And now we are very happy that he has become a lead for torch bearer for this program across India. तो ये फुल टाइम ये प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, दीपा बेन और सीनियर फैकल्टीज आर हियर. सो ऐसे हमने अभी तक बहुत लोगों को ट्रेन किया है. दिस इज मसीना हॉस्पिटल प्रोग्राम. जो मुंबई से हो जानते हैं, मसीना इज द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल इन मुंबई, more than 100-year-old hospital. So I did program for 300 staffs of Masina Hospital because the director was interested, Dr. Jokhi. He was director और उनको बताया तो उनको बहुत खुशी हुई, तो उन्होंने सबको ये कोर्स कराया वहाँ पे. So beautiful results we have seen. So last I would say, because I want questions from your side, it's a long journey between human being and being human. So मेरे हिसाब से, according to me, burnout prevention is the most important thing everyone is required in healthcare professionals. और burnout को prevent किया जा सकता है. We can have a healthy, wealthy and blissful life. Thank you very much. I would like to stop here, and if you have any questions, you can ask me. Thanks a lot, sir, for this such an energetic session. Once what happened, somebody was asking me, Dr. Okay. Jain, it is very difficult to concentrate in these online sessions. So how Okay. you concentrate, you please advise us. I Yes. said, I have only conducted these sessions. I have not attended even a single lecture yet. But today I have attended your full lecture, and it was so interesting, and I prepared notes also. I can show this. I prepared Okay, great. notes also. Great, sir. Because Excellent. I regularly conduct training program for our medical professionals, how to develop quality in our laboratory, in our hospital. And you discuss how we can develop quality in our life. Excellent. Thank you, sir. And I will discuss with Dr. Reena Tomar about this Vihasa course and Yes. how we can conduct this course in our center. So, सर सॉरी टू इंटरप्ट यू. मेरा अभी तक मेडिटेशन बाकी है. मैं अभी ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ. मैं मेरे क्लाइंट्स को छोड़ता नहीं हूँ. पर बिफोर गोइंग टू मेडिटेशन आई वुड लाइक टू हैव क्वेश्चंस अगर किसी को, क्योंकि यू नीड टू फील दैट रिलैक्सेशन. हम सबको पता है रिलैक्सेशन का फायदा होता है, लेकिन हमको रिलैक्स होना नहीं आता है. हमको रिलैक्स होना नहीं आता है. समझता सब कुछ है. इन महाराष्ट्र इन मराठी विषय कळतं पण वळत नाही. माना हमको समझता है, लेकिन वो आचरण में नहीं आता है. हमको पता है कि हम भाग रहे हैं, हमको रुकना चाहिए, लेकिन हम रुकते नहीं है, क्योंकि अंदर कोई तो बंदूक लेके खड़ा है, भाग नहीं तो मैं तुझे शूट कर दूंगा, तू रेस में पीछे रह जाएगा. ये कोई तो हमको बंदूक लेके अंदर हमको दौड़ाते रहता है. सो ये रिलैक्सेशन का स्किल अभी हम सीखने वाले हैं. पर बिफोर दैट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू आर ओके. अदरवाइज टाइम के हिसाब से मेरे पास 5 मिनट और है. सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल लाइक टू टेक यू टू द रिलैक्सेशन स्टेज. ओके, सो प्लीज अलाउ योरसेल्फ टू बी कंफर्टेबल. अलाउ, डोंट फोर्स योरसेल्फ, अलाउ योरसेल्फ टू रिलैक्स. और अगले 5 मिनट तक आपको केवल मेरा आवाज सुनाई देगा.
सबसे अच्छा इफेक्टिव लोग कहते हैं आपका वो लेक्चर तो हम भूल जाते हैं लेकिन रिलैक्सेशन को नहीं भूलते क्योंकि दैट इज मोस्ट प्रैक्टिकल। 5 मिनट में आप अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। There are various kinds of relaxation. I combine Jacobson's method of progressive muscular relaxation with meditation. तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप खुद अनुभव करना, अभी अपने बॉडी को देखना, आपके बॉडी में कहां पर टेंशन है, कितना भारीपन है, सिर दर्द है, कमर दर्द है, और 5 मिनट के बाद देखना कितना फर्क पड़ता है। मोस्ट ऑफ द लाइव सेशन अभी यहाँ का तो पता नहीं है क्योंकि ऑनलाइन होते हैं, लेकिन लाइव सेशन में 50% क्राउड सो जाता है, सो जाते हैं कमेंट्री के बाद क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती है। तो लेट्स सी, आप सोना नहीं है लेकिन रिलैक्सेशन का अनुभव करना। कंफर्टेबल बैठिए, सिर और गर्दन एक लाइन में रखेंगे, सिर और गर्दन एक लाइन में, सो दैट योर स्पाइन इज स्ट्रेट, है ना। 2 पैरों के बीच में डिस्टेंस रखेंगे और अपने दोनों हाथों को अपनी जंघा के ऊपर, कीप योर हैंड्स ऑन योर थाइज, सिट कंफर्टेबली। ओके, अगले 5 मिनट तक आपको केवल मेरा आवाज सुनाई देगा और कुछ भी सुनाई नहीं देगा। प्लीज कीप योर मोबाइल इन साइलेंट मोड। आपका फोन आपको डिस्टर्ब नहीं करे। 5 मिनट के लिए दुनिया बदलने वाली नहीं है, सो दैट आप इसमें पूरी तरह से उतर जाए। बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ। अगले 5 मिनट तक आपको केवल मेरा आवाज सुनाई देगा। बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ। फील द वाइब्रेशन सराउंडिंग यू। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखेंगे, शरीर बिल्कुल स्थिर। अगर आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। यू कैन क्लोज योर आईज, पर आपको केवल मेरा आवाज सुनाई देगा। बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। फील द वाइब्रेशंस इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग। आपके आजू बाजू में कोई भी आवाज आ रहा है उसको कैच करो, बट डोंट गेट डिस्टर्ब बाय इट। पंखा चल रहा है, अगर एसी है उसको फील करो। फील द वाइब्रेशन सराउंडिंग यू। बिकम अवेयर। एक्सेलेंट। धीरे धीरे चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र करो। सिर से लेके पांव के अंगूठे तक आपके शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं उसे महसूस करो। स्टार्ट स्कैनिंग योर फिजिकल बॉडी फ्रॉम हेड टू द टो। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। एंड सी, आपके शरीर के कौन से हिस्से में भारीपन है और तनाव है उसे महसूस करो। फील द टेंशन इन द मसल्स ऑफ योर फिजिकल बॉडी। स्टार्ट स्कैनिंग योर फिजिकल बॉडी and see and feel the tension in the muscles of your physical body. And now consciously, with your willpower, allow your body to relax. Relax. Let go. आपका पूरा शरीर हल्का होते जा रहा है, हल्का। शरीर के जिस हिस्से का मैं नाम लूंगा उसको हल्का छोड़ते जाएंगे। We'll start with the toes. Great toe, little toe, dorsum of the foot, sole of the foot, ankle joint. Relax, relax, let go, move ahead. Feel the tension in the muscles of the calf and thigh muscles. Feel the tension and consciously with your willpower, release the tension. Relax. आपके दोनों पैर हल्के होते जा रहे हैं, शांत एंड रिलैक्स। दोनों पैरों के अंदर की थकावट पूरी तरह से दूर होते जा रही है। यू आर फीलिंग वेरी लाइट एंड पीसफुल, शांत, रिलैक्स। एक्सेलेंट, मूव अहेड। फील द टेंशन इन द मसल्स ऑफ द बैक, लोअर बैक, मिडल बैक, upper back. Feel the tension in the muscles of the back and consciously with your willpower release the tension. Relax. आपके बैक मसल्स भी हल्के होते जा रहे हैं, शांत एंड रिलैक्स। Now shift your attention to your chest and abdomen. Feel the tension in the muscles of the chest and abdomen. And consciously with your willpower, release the tension. Relax. Relax.
लेट गो। आपका छाती और पेट पूरी तरह से हल्के होते जा रहे, शांत एंड रिलैक्स। With every breath, you are going in deeper and deeper stages of relaxation. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है. Shift your attention to your upper limb, shoulder, arm, elbow, forearm, wrist, fingers and palm of the hand. Feel the tension and release the tension. Relax. आपके दोनों हाथ एकदम हल्के होते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है. गर्दन के नीचे आपका पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है, शांत एंड रिलैक्स. Now pay attention to your neck muscles, front side, back side, right side, left side. Feel the tension in the muscles of the neck. And consciously with your power release the tension. Relax. आपके neck muscles भी हल्के होते जा रहे हैं. Shift your attention to facial muscles and scalp muscles, forehead, eyebrows, eyeballs, nose, lips, cheek, chin muscles. Drop down your chin and you are relaxed. आपके facial muscles भी हल्के होते जा रहा है. From head to the toe, you are totally relaxed and peaceful. शांत. You will go in deeper and deeper stages of relaxation. 1 से 10 में उल्टा गिनूंगा, आप और हल्के होते जाएंगे, बिल्कुल weightless. जैसे मैं 10 से 1 की तरफ आऊंगा, you will go in deeper and deeper stages of relaxation. 10, 9, 8, आपका पूरा शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत एंड रिलैक्स. 7, आप और हल्के होते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है. 6, you are going in deeper and deeper stages of relaxation. You are feeling very light and peaceful. शांत. 4, आप और हल्के होते जा रहे हैं, आप बिल्कुल वेटलेस होते जा रहे हैं, आपका कोई वजन नहीं है, आपका शरीर और मन शांत हो चुका है. 3, you are feeling very light and peaceful, शांत और रिलैक्स. 2 और 1, आपका पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है, शांत एंड रिलैक्स. This is your original nature. You are originally peaceful and relaxed. Now visualize you are a brilliant white light shining in the center of the forehead. आप इस शरीर के अंदर एक दिव्य प्रकाश है. A peaceful being of light. Peace is your original nature. आप बिल्कुल शांत है, प्रसन्न है, रिलैक्स है. परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, वो ओशन ऑफ पीस है. वो आपको आशीर्वाद, ब्लेसिंग, दुआ दे रहा है. एक डिवाइन लाइट इज कमिंग फ्रॉम स्काई टू यू, एंटरिंग योर फिजिकल बॉडी. और जैसे ये लाइट आपके शरीर में फैल रही है, आपके शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बनते जा रही है. All the toxins in your body are getting dissolved. Your every cell is getting purified. आप बिल्कुल शांत और रिलैक्स होते जा रहे हैं. शांत एंड रिलैक्स, वेरी पीसफुल, बहुत अच्छा. धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए केवल अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएंगे और महसूस करेंगे मेरे हाथ और पैर की उंगलियां हिल रही है पर मैं बिल्कुल शांत हूँ. इसका मतलब दिन भर काम करते वक्त भी इस रिलैक्स स्टेट पे मैं रह सकता हूँ. ये मेरी ओरिजिनल अवस्था है. Slowly, without moving your body, please come to the original state and relax. Become aware of your room and feel light and peaceful.
Om Shanti. Thank you very much. So that is just 5 minutes. क्या आप में से जस्ट मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा स्क्रीन ऑन करेंगे सभी और बताएंगे किसको किसको हल्का लगा. जिसको हल्का लगा वो हाथ खड़ा करेंगे. Those who felt light, just raise your hands. जिसको हल्का लगा, excellent, congratulations. इसका मतलब आप ये कर सकते हैं, पॉसिबल है. और यही मैं आपको बताना चाहता था कि being light and peaceful is our original nature. Thank you very much. I have exceeded by 3 minutes. Sorry for that. Thank you, sir. It was a wonderful session. And I think all of us have enjoyed this. I personally enjoyed a lot. And I think same is true for each and every person who participated in this program. Yes, thank you very much. If you have any questions, you can contact me on my mobile. और मैं सर आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए. एंड वी वुड लाइक टू ऑफर आवर सर्विसेज. और ये बिहासा इंटरनेशनल प्रोग्राम है तो बहुत अच्छा है और ये हम ऑफर करते हैं. एंड देन यू रन द शो. अभी तक हमारा ऐसे अनुभव है. मैं महाराष्ट्र का बताता हूँ. डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च DMER, जिनके अंडर सभी कॉलेजेस आते हैं, उन्होंने हमको लेटर दिया है कि सभी कॉलेजेस में आप ये करो करके. और भारत के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में हम कर रहे हैं. तो हमको बहुत खुशी होगी कि हम अगर स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए कुछ कर पाए. थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सुखी रहे, आपके परिवार वाले भी सुखी रहे. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. सर मैंने तो इसके बारे में सिर्फ सोचा था, बाकी तो डॉक्टर रीना तोमर ने किया है जो किया है. तो रीना तोमर को थैंक यू, उनको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग. पर आप इंस्ट्रूमेंट है, भगवान के इंस्ट्रूमेंट है ना. आपके द्वारा ये प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए आपको भी मुबारक. थैंक यू सर. ठीक है. थैंक यू वेरी मच एंड आई स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच. गुड डे. Thank you, sir, and thanks to all for your wonderful participation. And every day or every alternate day, all of you have the information, and you will get the information daily for our coming lectures. And I will request all of you to participate, and you will really enjoy as you have enjoyed today. So now, we are ending this meeting. Yes, sir. नहीं, आज का सेशन कई लोग वीडियो मांग रहे हैं, तो वो लिंक आप शेयर करेंगे क्या? मैं शेयर कर दूंगा, हमने रिकॉर्ड. ओके ओके. थैंक यू वेरी मच सर. गुड डे सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you. Now I am ending this meeting here. Namaskar and Om Shanti. Thank you.